say in terms of, okay, so when it comes to different cities, give me like a ballpark figure in terms of how price is determined in terms of different cities. Say somebody, there's a two-part question. One हाँ. is, say, Bombay rent versus Delhi rent versus Yeah. Calcutta rent. हाँ. Huge difference, Yeah. right? And in that, like, descending order, मतलब Bombay highest, उसके नीचे Delhi, उसके नीचे Calcutta. If one has to invest in a property in terms of, say, एक तो work opportunity है, and you can't leave a city like Bombay, what do you recommend? Like, how would you pan it out in terms of financially कि यार ये इस जगह पे रह सकता हूँ, इसका रेंट इतना है. ये इसमें मेरी मैथ नहीं चलेगी, इसमें आपकी प्रायोरिटीज़ चलेंगी कि आपको क्या छोटा घर टेम्पररी मंजूर है जो आपके ऑफिस के पास में है, या आपको बड़ा घर थोड़ा दूर चाहिए क्योंकि वो आपको शायद सस्ता मिले. फॉर एग्जांपल, आपका ऑफिस बीकेसी में है, आपको बीकेसी में घर छोटा मंजूर है, या आपको बड़ा घर कुछ 25 से 40 मिनट दूर मंजूर है. ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है. तो चाहे उसकी प्राइस सेम ही है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो उसका रेट पर स्क्वायर फुट होता है, ठीक है. तो अब आप 1000 स्क्वायर फुट का घर लो, राइट, या 500 स्क्वायर फुट का घर लो. वो 500 वाला आपके मेन हब में उतने का होगा जितना 1000 स्क्वायर फुट वाला उससे काफ़ी दूर होगा. पहली बात तो ये है कि आपकी चॉइस क्या है, ओके, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. दूसरा ये है कि आप अपने EMIs कैसे अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि एक पॉइंट पे आके आप डाउन पेमेंट के बाद आपको मंथली EMI देनी पड़ेगी, राइट, अगर आप लोन ले रहे हो, विच इज़ मोस्टली व्हाट पीपल डू. तो फिर आप किस जंक्चर पे आकर वो मंथली EMI अफोर्ड कर सकते हो, राइट. ये आपको देखना पड़ेगा. ये आपकी जॉब पे डिपेंड करता है, इसमें कोई थंब रूल नहीं है. ओके. ये आप यहाँ पे पहुँच सकते हो एट 26, यहाँ पे आप पहुँच सकते हो एट 46 ऑल्सो. द एवरेज एज ऑफ अ होम बायर इन NCR आई कैन से इज अबाउट 36 years. ये पहले 31 होता था. नाउ विद द एवोल्यूशन ऑफ फिनटेक हमारी सेविंग्स काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि पहले जब हम कैश से पेमेंट करते थे तो हम इंटरैक्ट करते थे बिल के साथ. करेक्ट. मैं बिल खोल के देखती थी कि वो 2000 रुपये मैंने पैसे निकाले डाले, मुझे ध्यान में रहा, मेरे पॉकेट में जितने थे वो जैसे ख़त्म हो रहे हैं मैं ये ध्यान रख रही हूँ. करेक्ट. फिर कार्ड सिस्टम आया, जब चिप एंड पिन था तो एटलीस्ट मैं जब इन दोज माइक्रो सेकेंड्स ऑफ एंटरिंग द पिन मुझे दिख रहा था कि मैं कितनी पेमेंट कर रही हूँ, राइट. अब आप टैप पे आ गए हो, UPI पे आ गए हो, अब आप इंटरैक्ट ही नहीं करते हो अपने ट्रांजैक्शंस के साथ, करेक्ट, राइट. तो saving has reduced significantly as fintech has evolved. That is number one. With the evolution of social media also, everybody wants to live better. There are various studies on this that say that there is a subconscious pressure that I must look cool. Hence, I must travel. I must wear, clothes from a certain brand. I must eat at these restaurants because everybody around me seems to be doing it. And the truth is, most people are living under this pressure. So as our sort of investment towards lifestyle increases, that also affects savings. Which is why, let's say, now it takes 5 years more for someone to comfortably be in a position to say that I have enough that I save to invest in a property. Yeah. Interesting. So when it comes to, say, Delhi NCR, the average age has now increased to 36. Yeah. What about other parts of the country? If you can give us any data. It is in terms of. It is anywhere between 34 to about 40 is what a first-time buyer in general would be in most metro 40. cities. Yeah. And what? And is there a first time budget allocation for a first time home buyer? It's so subjective, na? Right. आपकी इनकम और मेरी इनकम में कितना No, but then फर्क है? when you're talking about average age, is that not linked to? No, because the average age can be someone. A 36-year-old could be buying a flat in Greater Noida, and a 36-year-old could be buying a flat in, let's say, just the beginning of Noida. अब वो दोनों जगहों में 30 मिनट का फ़र्क है. तो दोनों के बजट्स में भी उतना ही फ़र्क है. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल है ही नहीं.
ये तो जो बायर है उसको देखना है कि मुझे घर कब खरीदना है और कहाँ खरीदना है और मेरी उस टाइम की प्रायोरिटीज़ क्या हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगल हो और फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर आपकी शायद कोई इंटेंशन ही नहीं है टू हैव अ पार्टनर, तो आपको 1 बेडरूम स्टूडियो भी चलेगा. बट अगर आप डिसाइड करते हो एट सम पॉइंट इन टाइम कि नहीं आई वांट अ फैमिली, फिर उसके लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए. मे बी अ फर्स्ट टाइम बायर इज समवन हु सेइंग कि यार मैं अब एक ही बार लूँगा या लूँगी और मैं 3 बेडरूम का ही लूँगा या लूँगी कि मेरे पेरेंट्स भी आ जाए, मैं भी आ जाऊँ, माई पार्टनर्स ऑल्सो देयर, और एक रूम स्पेयर है. टुमारो यू नो इट्स ईदर अ गेस्ट रूम और इफ़ वी वांट टू हैव चिल्ड्रन व्हाटएवर दैट माइट बी. So it's completely dependent on what the buyer's sentiment is at that point in time.